Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello and good morning my dear students. Welcome to English class. बच्चों, today we are going to study a new lesson, a new story from our supplementary reader book, that is Snapshots. So in this book we have already studied first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, and now we are moving on further to second chapter, that is The Address, written by Marga Minko. This is the story about the address. As given in the name of the chapter, as you can see, the title of the chapter is The Address. The story is based on the address only. And now what is there in this story? I am just giving you an overview. In this story, there is one child, the narrator. When she was in Holland, there was some war, and her mother's acquaintance means someone we have in contact with. So the acquaintance was very cunning, and she said to her mother, okay, because of this war we don't know whether you will have to stay here or you will have to leave the place. So I think you should give all your belongings, you should give all your things to me. I will keep them safely at my home. तो ये जो एक्वेंटेंस थी, इन्होंने कहा कि आप अपना सारा सामान मुझे दे दीजिए और मैं इनको अपने पास अपने घर पे बहुत ज़्यादा संभाल कर रखूँगी. आपको कहीं यहाँ पे अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा तो आपका सामान कोई चोरी कर लेगा, कुछ भी हो सकता है सामान के साथ, तो बेहतर होगा कि आप मुझे अपना सामान दे दीजिए, मैं इसको अपने पास संभाल के रखूँगी. और फिर बाद में आफ्टर वॉर, आफ्टर many years, when narrator goes to that lady, that acquaintance, then she refuses that, okay, I don't know who are you, and everything like that goes on, and that is the thing which we are going to study in this story. Okay, so let's start. Okay, do you still know me? I asked. Who is I here? I is Marga Minko, the narrator of the story. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. I asked the woman, Do you still know me? अब यहाँ पे क्या हुआ, जो नरेटर हैं वो एक दिन उस लेडी के घर जाती हैं जिनके पास उनका सामान होता है, और उनके घर के जाके दरवाजे पे, चौखट पे, ऑन द स्टेप में दरवाजे की जो चौखट है वहाँ खड़ी हो जाती हैं और वहाँ जाके उनसे पूछती हैं, क्या आप मुझे जानती हैं? जो वुमन थी जिससे उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, वो वुमन उनको बहुत ही ज़्यादा अचंभे से और ऐसे जैसे कि वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो, इस तरीके से देखती है. उन्होंने, जो वुमन थी, उन्होंने बस दरवाज़ा जो था बहुत थोड़ा सा, बस एक होता है ना झांकने वाला, अननोन आदमी होता है तो हम सिर्फ दरवाज़ा खोल के झांकते हैं कि कौन है, उतना सा दरवाज़ा खोल रखा था. तो जो ऑथर थी, जो नरेटर थी, वो थोड़ा आगे गई और उन्होंने सोचा शायद वो मुझे दूर से देख ना पाएँ, और चौखट पे जाकर खड़ी हो गई और लेडी को पूछने लगी, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? नो, आई डोंट नो यू. नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, वुमन ने जवाब दिया. आई एम मिसेस एस डॉटर. तो जो और नरेटर हैं, नरेटर कहती हैं कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ. आई एम मिसेस एस डॉटर. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. ये किसने कहा? ये नरेटर ने कहा. नरेटर कहती हैं कि जो लेडी थी उन्होंने अपना हाथ दरवाजे पे इस तरीके से रख रखा था जैसे कि वो चाह रही थी कि दरवाज़ा और नहीं खुल पाए. यानी कि वो क्या कर रही थी, वो दरवाजे को बहुत हल्का सा खोले हुई थी ताकि सिर्फ वो नरेटर को देख पाए और नरेटर उनकी शक्ल देख पाए, ना कि अंदर का कुछ और देख पाए. तो वो क्या कर रही थी, यहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा इस तरीके से पकड़ रखा था कि दरवाज़ा और ना खुल पाए और
वो नरेटर है वो ये कहती हैं कि उनके फेस पर, उस वुमन के फेस पर पक्का से पता चल रहा था कि वो मुझे नहीं पहचान पाई हैं और वो मुझे चुपचाप से घूर रही थी। स्टेयरिंग मीन्स घूरना, कि वो मुझे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हैं, चुपचाप से बस मुझे घूरे चले जा रही थी। और उन्होंने दरवाजे को भी ऐसे पकड़ रखा था कि वो दरवाज़ा और ना खुल पाए। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't it her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. I was most probable that I had rung the wrong bell. अब क्या हुआ, नरेटर ने कहा, नरेटर ने सोचा, लगता है मैं कहीं गलत जगह आ गई हूँ, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैं कहीं और आ गई हूँ। ये शायद वो लेडी नहीं है जो मेरे घर पे आया करती थी और मेरी मम्मी को जिन्होंने सामान दिया था, मम्मी ने जिनको सामान दिया था, तो शायद ये वो नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने शायद इनको गलत पहचान लिया है। वो क्यों? क्योंकि मैंने उनको, जब वो सालों पहले जब मैं उनसे मिली थी तो बस मेरी एक कैजुअल सी मुलाकात हुई थी, सिर्फ एक बार मैंने उनको ऐसे ही देखा था और वो भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देखा था, तो शायद मैंने इनको पहचानने में गलती कर दी है। ये वो नहीं है जो मेरे घर से मेरी मम्मी से सामान ले गई थी, शायद मैं गलत जगह आ गई हूँ, शायद मैंने किसी गलत दरवाजे पे बेल रिंग कर दी है, बेल बजाई है, किसी के गलत घर पे आ गई हूँ मैं। The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. अब आगे ऑथर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो वुमन थी उनको जब ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आई, दरवाजे की तरफ, और दरवाजे के डोर के साइड में खड़ी हो गई और दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी मैंने अचानक से देखा कि जो वुमन थी वो मेरी मम्मी का ग्रीन कलर का बुना हुआ कार्डिगन पहनी हुई थी। कार्डिगन यू नो ना, स्वेटर टाइप का होता है जो गर्ल्स या लेडीज़ लोग पहनते हैं। तो ग्रीन कलर का बुना हुआ कार्डिगन उनकी मम्मी का था, नरेटर की मम्मी का था, मिसेस एस का था, जो ये लेडी पहनी हुई थी। तो नरेटर ने तो तुरंत से पहचान लिया, अरे ये तो मेरी मम्मी का कार्डिगन है, ये तो मेरी मम्मी ने बुना था इसको। और जो उस पर वुडन बटन्स लगे हुए थे, वुडन मीन्स लकड़ी के नहीं, बल्कि टाइप ऑफ वुडन, मतलब इस तरीके से जो लकड़ी के उस पर बटन लगे हुए थे, वो बटन क्या थे, वो शायद धुल धुल कर पेल हो गए थे, फीके पड़ गए थे, उनका कलर वगैरह उड़ गया था। तो वो कहते हैं कि इसको देख करके मैंने तुरंत से पहचान लिया कि ये जो मेरी कार्डिगन है ये मेरी मम्मी का है। और जैसे ही उस लेडी ने मुझे देखा, उस वुमन ने मुझे देखा कि मैं उनको उस कार्डिगन को देख रही हूँ, उस कार्डिगन को पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, तो उन्होंने अपने आप को फिर से दरवाजे के पीछे छुपा दिया। यानी कि अब वो फिर से दरवाजे के पीछे हो गई पूरी तरीके से, ताकि मैं उनको ना देख पाऊँ। और अब मुझे एहसास हो गया, अब मुझे पता चल गया था कि मैं सही जगह पर आई हुई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक जगह पर हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पे आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का बुना हुआ कार्डिगन पहचान लिया था। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप मेरी मम्मी को तो जानती ही होगी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तो अब उसने जब कहा इस तरीके से कि आप मेरी मम्मी को तो जानती ही होगी, क्योंकि जो वो उन्होंने लेडी ने पहचान लिया था कि वो जो नरेटर है वो क्या कर रही हैं, वो कार्डिगन को घूर रही हैं, कार्डिगन को पहचान रही हैं। यानी कि अब क्या हुआ, जो वुमन थी वो समझ गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है और वो उनको जवाब देती हैं। जब नरेटर पूछती है आप मेरी मम्मी को तो जानती होगी, तो वो जवाब देती हैं कि अच्छा तुम वो लोग वापस आ गए, लेकिन मैंने तो सोचा था शायद कोई वापस ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वॉर में इतना ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है कि नॉर्मल पब्लिक को भी, आम लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, काफ़ी सारी लाइव्स चली जाती हैं, ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे तो लगा था कि शायद कोई वापस ही नहीं आएगा, आप लोग वापस आ गए हो। तो जो नरेटर है वो जवाब देती हैं, ओनली मी, नहीं सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ, बाकी और कोई नहीं है। सो आई होप बच्चों इतना एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा।
Now we'll continue further this explanation through next video. But before going, don't forget to hit like button, and if you haven't subscribed the channel, subscribe our school YouTube channel also. Okay, do watch next video for further explanation. Till then, take care. Bye bye. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।